Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. Ozone auto hemotherapy. It's a major ozone auto hemotherapy जहाँ पे हम blood लेते हैं, almost 50 ml of blood जो हम normal उसमें MST करते हैं, उसके अंदर we ozonize that blood and we retransfuse that blood. उसको ना केवल various disease के अंदर जो मैं अभी तक discussion कर चुका हूँ, जितनी भी inflammatory diseases होती हैं, especially chronic inflammatory disease like rheumatoid arthritis, osteoarthritis, degenerative spine diseases, avian conditions, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सीलियक डिजीज, इन सारी तमाम कंडीशंस के इन्फेक्शियस कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. बट नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, बॉडी की इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिजुविनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. दे आर डूइंग ईबूज इन हेयर फॉल्स पेशेंट्स ऑल्सो. सो वी ऑल्सो कीप ऑन टेकिंग दीज मेडिकेशन फॉर नॉर्मल वेलबींग. आज हम लोग जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि वी एज ए डॉक्टर ऑल्सो कीप ऑन टेकिंग दिस सो दैट वी कैन ऑल्सो रिमेन फिट एंड फाइन एंड हेल्दी फॉर नॉर्मल वेलबींग. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक माई ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी एंड माई टीम विच इज वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, दे विल डू एवरीथिंग. सो आज हम ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी में अपने ऊपर ही करने वाला हूँ. आई एम टोटली डिजीज फ्री, भगवान की दया से अभी तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है. कंप्लीटली फिट, डूइंग एवरीथिंग, डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेज, एवरीथिंग डेली, just for remain healthy, fit and fine, anti-aging and rejuvenation. We are taking this ozone automotherapy time to time. I usually take it 3-month interval. So today is my time to take ozone automotherapy. We are doing, मैं पहले ozone automotherapy से पहले मैं blood दे रहा हूँ, so that मैं उसके slides बना के we will see and we ask our pathologist to see any changes. और फिर immediately after ozonization, ozone automotherapy फिर एक sample हम लोग देंगे जिसमें हम लोग फिर दोबारा से peripheral blood smear बना के देखेंगे और हमारे pathologist हमें बताएंगे क्या changes कुछ ऐसा specific आया है क्या. कलेक्शन कर रहे हैं सर का. Now they are collecting blood, even I am giving blood for my full body checkup also. तो full body checkup के लिए भी दे रहा हूँ. और इस ब्लड से हम अभी पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी बना के देखेंगे कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कैसा दिख रहा है और ओजोनाइजेशन के बाद उसमें क्या चेंजेस आए. See my head and root for the ozonization before the ozone automotherapy. Now we will go for ozone automotherapy and then again we will collect few sample so that we can see कि हमारे इसमें क्या चेंज आ रहा है. कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद अभी हम ऑटो हीमोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं. ऑटो हीमोथेरेपी की तरफ के लिए हमने सारा सामान रेडी कर लिया है, तो अभी ऑटो हीमोथेरेपी करेंगे. सो दीज आर द MAST बोतल, iOS MAST बोतल जो वैक्यूम बोतल्स हैं और उसके अंदर हम लोग अब कट करेंगे ब्लड ऑफ 50 ml, देन दे विल ओजोनाइज्ड एंड दिस इज द UVBI चैम्बर. UVBI चैम्बर दिखा दो. दिस इज द UVBI चैम्बर, अल्ट्रा वायलेट ब्लड इरिडेशन चैम्बर. इट इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द ब्लड. ये ब्लड की पोटेंसी को बढ़ाता है, इसलिए 1 MAST इक्वल टू ऑलमोस्ट 4 to 5 के बराबर हो जाती है. They have started collecting the blood. Now we will take 50 ml of blood and we will now ozonize this blood and then we will retransfuse this blood. So now my nursing head, Mrs. Seema, is collecting the ozone and it will be like at 1/8, so 70 microgram. So once they reached almost 40, we have released the tourniquet so that और ज़्यादा blood ना आए, and then we will take 50 and we will just, they will show you how this will get diffused. So the whole team is now completely trained, even they didn't need me. ये completely खुद से ही सारा चीज़ manage कर लेते हैं. Now they collected the ozone. Now you can see it will bubble out. See, so this is the diffusion. Now it is going inside and this is the diffusion. So you can see the change in the color. It becomes cherry red color. So highly ozonized जब blood होगा तो it will become cherry colored. वो cherry red color हो जाता है. Normal जो fresh blood होता है light color होता है. Now it has converted into cherry red color and now they will transfuse it through the UVBI chamber. This is what we call as ozone auto hemotherapy with UVBI. I am really enjoying this because हम patients पे देते हैं. So अपने आप पे जब ले रहे हैं तो it also increase the confidence of my patients that these therapies can be taken. Doctors are taking themselves. So it need to be retransfused within 8 to 10 minutes. 8 से 10 मिनट के बीच में हमें इसको retransfuse करना पड़ता है. Because they are UVBI chambers, then we will just switch off the lights. Time. Absolutely fine. So UVBI is ultraviolet blood irradiation technique and this is a US FDA approved. पहले जब एंटीबायोटिक्स डिस्कवर नहीं हुई थी तो उस समय में ब्लड को या किसी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट्स का यूज़ किया जाता था, अल्ट्रावायलेट लाइट्स का यूज़ किया था, यूवी लाइट्स का, बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली. सो इनका इस्तेमाल किया था. बट आफ्टर
इन्वेंशन ऑफ एंटीबायोटिक्स उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो चुका था. नाउ इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन हैज स्टार्टेड यूजिंग दिस थिंग इन वेरियस डिजीज कंडीशन. अलग अलग डिजीज कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ना केवल ओनली फॉर नॉर्मल, नॉट ओनली फॉर डिजीज पर्पस. जैसे डिजीज की तो हम हमेशा ही बात करते रहते हैं कि रोमेटोइड आर्थराइटिस, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजेनरेटिव चेंजेस है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथीज हो रखी है, आपको पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, ये सब चीजें रहते हैं, इन सब चीज के लेते हैं. इसके साथ में जस्ट टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, आपकी जनरल वेल बीइंग के लिए, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, रिसेंटली आई हैव सीन दैट दे आर यूजिंग ईबू इवन फॉर हेयर फॉल, जिसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट, इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट. कि लेट्स सी कि क्या चेंजेस इसके अंदर आता है, इसके बाद से कितना एडवांटेज हमें मिलता है, एंड एनर्जी लेवल कितना बेटर होता है. सो दीज आर द थेरेपीज विच normal individual can take, which act as anti-aging, rejuvenation, enhancement, and it basically acts as an immunomodulator. आपके immune system को boost करके लेके आता है. और आज के टाइम में हम इतने, जैसे स्पेशली द पीपल हु आर लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, दे आर गेटिंग एक्सपोज टू सो मच ऑफ टॉक्सिन्स, सो मच ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर, इन वाटर. तो ये हमें एक तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है. तो बेसिकली वी आर डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी. इसके साथ में अगर जैसे आज हमने ऑक्सीडेटिव थेरेपी ली है, तो नेक्स्ट डे जब हम जाते हैं तो वी कैन टेक द हाइड्रोजन थेरेपी, विच इज अ वेरी मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट अगर जो भी है, दैट इज हाइड्रोजन थेरेपी. अलोंग विद दैट यू कैन टेक ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस आल्सो, व्हिच एक्ट्स एज अ हाईली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. तो बेसिकली आइडिया इज टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी. आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हो, तो वो एक डिजीज के लिए नहीं, नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए भी हम डिटॉक्सिफाई करते रहे. तो इतने सारी जो इन्वायरमेंट में आज के समय में पोल्यूशन जो इतना हो रहा है, और उस पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन इस समय नहीं है. और हमें हर दिन, जैसे नाउ वी आर इन एनसीआर, आई इन गुड़गांव, तो यहाँ पे हमारा जो AQI लेवल है 300, 350, 400, 4 उससे भी ऊपर जा रहा है, जिसमें सिर्फ स्कूल्स बंद हो जाते हैं, बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं. बट वी आर टेकिंग दैट एयर विच इज़ सो पॉइजनस एंड टॉक्सिक टू अस. सो एंड वी कैनॉट चेंज द एयर, वी कैनॉट चेंज द प्लेस. हम भाग नहीं सकते कोई भी यहाँ से छोड़ के. तो वट वी हैव, we need to keep on taking this therapy so that we can remain fit and fine, and अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यूसली चलाते रहें फिट एंड फाइन होके, ताकि डिजीज़ से भी हम अपने आप को बचा सकें. पोल्यूशन की वजह से इतनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज़ स्पेशली बच्चों के अंदर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से इतनी सारी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ पेशेंट्स के लोगों के अंदर बढ़ चुकी है. तो ये सब थेरेपी, इसके साथ में इंटीग्रेटेड मेडिसिन के जब हमने बात किया कि आपकी डाइट के अंदर चेंजेस, आपके अंदर योगा, मेडिटेशन, फिजियोथेरेपी, बाकी चीज़ें, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ का बहुत बड़ा रोल है, ताकि अपनी बॉडी को, जनरल वेल बीइंग को बढ़ा सके, और अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रह के एक नॉर्मल हेल्दी फिट एंड फाइन जिंदगी जी सके. 30 ml ब्लड वहाँ पे जा चुका है. वो UVI चैम्बर में हमारी ओजोन जो ऑटोइमोथेरेपी की बोतल है वो लटकी हुई है, वहाँ से ऑलमोस्ट ब्लड जा चुका है. ओनली 15 ml ऑफ ब्लड इज नाउ लेफ्ट, जो अभी ओजोनेट होते हुए यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसफ्यूज हो रहा है, एंड आई एम टोटली फिट एंड फाइन. तो अभी हमारा जो ये ब्लड जो हमने कलेक्ट किया था वो पूरा ट्रांसफ्यूज हो चुका है, बोतल का पूरा ब्लड खत्म हो चुका है. अभी जो रिमेन्स बचा है वो IV सेट में है. तो जो भी जितना भी ब्लड इसमें जा सकता है वो पूरा हम IV सेट का भी ट्रांसफ्यूज करेंगे, जितना इसको पूरे को एम्प्टी करके फिर उसके बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे. सो द ओजोन ऑटोइमोथेरेपी इज फिनिश. सो वी हैव क्लोज द UVI चैम्बर, और अब जो भी ब्लड बचा हुआ वो सारा का सारा IV सेट के अंदर है. तो ये भी 2 to 3 ml of blood will be 3 to 4 ml of blood will also be given. We will just remove it and then raise it so that वो जा सके. Or then ozone autotherapy is finished. I'm completely fit and fine. We will take sample also so that we can again do peripheral blood smear and we'll see कि ozone के बाद क्या changes उसके अंदर आते हैं. So ozone autotherapy is finished and I need to अप्लाई सम प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है, किसी प्रकार की कोई ब्लड ना आए वापस. टू कीप इट प्रेसिंग फॉर 2 to 3 minutes. वी कैन यूजुअली कीप पेशेंट फॉर 10 to 15 minutes सो दैट कई बार पेशेंट्स को थोड़ा बहुत अनईजीनेस अगर फील होता है तो, एंड देन आफ्टर 15 to 30 minutes ऑफ ऑब्जर्वेशन वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओजोन ऑटोइमोथेरेपी.